नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। रागा का शब्दबाण राहुल गांधी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और साथ में पड़ोसी देश भी अपने तेवर दिखा रहे हैं, जिससे भारत के सामने एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। हालांकि मोदी सरकार भी यथासंभव स्थितियों को संभालने में जुटी है और माहौल को अपने पक्ष में बता रही है। आज पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पर गए और चीन को सख्त संदेश भी पहुंचाकर आए। लेकिन देश के भीतर विपक्ष लगातार सवाल दागने में जुटा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं और स्थिति को समझाने की कोशिश की है कि आखिर चीन ने ऐसा दुस्साहस करने का यही समय क्यों चुना। राहुल गांधी ने बताया है कि हम हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं और कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था, आम नागरिकों की भावना, पड़ोसियों के साथ संबंध और दूसरे देशों से तालमेल से मजबूत बनता है। आज भारत के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी की गलत नीतियों ने देश को कमजोर किया है और हमें असुरक्षित छोड़ दिया है। तो वहीं सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के सभी सवालों का चुन चुनकर जवाब दिया है और राहुल गांधी को फिर से समीक्षा करने की नसीहत दी है। The question is, why have the Chinese chosen this particular time to move? What is it about India's situation that has made China act in such an aggressive way? What is it about this moment in time that has allowed the Chinese to have the confidence that they can move against a country like India? And to understand that, you have to go into multiple spaces. Countries are protected not by one particular thing, but by a confluence of forces, by a confluence of systems. Okay? So a country is protected by its foreign relationships, it is protected by its neighborhood, it is protected by its economy, it is protected by the feeling that its people have, the vision that its people have. And what has happened over the last 6 years, that on all those areas, India has been disturbed and disrupted. And I'll cover each one of them. Let's start with foreign policy. Our relationship with the outside world used to be with multiple countries. We had a relationship with America, strategic partnership with America, I would say, and that is very important. We had a relationship with Russia, we had a relationship with Europe, and these countries used to help us maneuver in the world. Today, our relationship has become transactional. We have a transactional relationship with the United States. We have disturbed our relationship with the Russians. We have a transactional relationship with Europe. Now let's come to our neighborhood. Earlier, Nepal was a friend, Bhutan was a friend, Sri Lanka was a friend. Our neighborhood, other than Pakistan, was working with India and saw itself as being partnered with India. Today, Nepal is angry with us. If you go to Nepal and you speak to the Nepali people, they're furious with what has happened. Sri Lankans have given a port to the Chinese. Maldives is disturbed. Bhutan is disturbed. So we have disrupted our foreign partners, we've disrupted our neighborhood. Now let's come to the economy. Our pride, something that India used to go to the rest of the world and talk about, boast about. Worst economic growth, 50 years, no end in sight, absolute disaster, unemployment highest in 40-50 years. So our strengths have suddenly become our weaknesses. We told the government that, look, please realize that we are becoming vulnerable. All these things are connected. They're not separate. When you look at a nation, you have to look at all these factors and you have to act taking into account all these factors. We told them, listen, for God's sake, inject money into the economy, fire the economy, and do it immediately.
protect the small and medium businesses. Refused to do it. So today you have a country which is economically in trouble as far as foreign policy is concerned, in trouble with its neighbors. And that's why the Chinese have decided that this is possibly the best time to act. And that is why they have acted. इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। तो जिस तरीके से आपने देखा राहुल गांधी ने जो तमाम सवाल सरकार पर उठाए, और वो भी आपने देखा जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सुना आपने कि जिस तरीके से लगातार जो कोशिशें चीन की तरफ से की जा रही हैं भारतीय जमीन पर कब्जा करने की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी भारत की जमीन को भारत से नहीं छीन सकता। और ऐसे में उन्होंने यहां पर यह भी कहा है जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कि अब मोदी सरकार है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है जो फैसले लेने से नहीं डरता और किसी भी तरह के फैसले ले सकता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज तमाम सवाल उठाए हैं उन पर जवाब दिया है डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री ने। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश नीति पर कुछ सवाल उठाए हैं जिनके जवाब उन्होंने एक एक करके दिए हैं। एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी प्रमुख भागीदारी मजबूत हुई है। अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ अनौपचारिक बैठकें भी हुई हैं जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सिर्फ लेन देन की ही अब हमारे जो संबंध हैं इन देशों से हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से जो पड़ोसी देशों के बारे में उन्होंने कहा, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के बारे में, मालदीव के बारे में, म्यांमार के बारे में, उस पर भी जवाब दिया। और पाकिस्तान जिसके बारे में राहुल गांधी ने सवाल भी नहीं पूछा था उसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है। और एक बार फिर से राहुल गांधी को समीक्षा करने के लिए उन्होंने नसीहत दी है। तो जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो कोरोना महामारी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या फिर चीन के साथ जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है भारत की, उसको लेकर के लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। केंद्र सरकार पर हर तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उसमें उन्होंने तमाम वो बातें बताई हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त में चीन ने भारत के साथ ऐसा दुस्साहस क्यों किया और यही वक्त क्यों चीन ने चुना है भारत के साथ जो सीमा पर फिलहाल जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उसमें तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश की सुरक्षा कई पहलुओं से होती है, कई तरीके से होती है। उसमें विदेशी संबंध भी होते हैं, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था भी होती है, उसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी हमारे देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बीते 6 साल जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, केंद्र में मोदी सरकार रही है, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर 6 साल को साफ तौर पर कहा है कि 6 साल में जो स्थिति देश की बनी है वो काफ़ी भयावह है और देश कमज़ोर होता जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ तो संदीप त्रिपाठी कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार आनंद त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है एनपी न्यूज पर। धन्यवाद। संदीप त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि लगातार चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो देश में, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, कोरोना महामारी की बात हो, लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं वो सीधे सीधे विदेश नीति पर आज सवाल उठाए गए। संदीप जी, जी संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से लगातार जो भी
स्थिति भारत के सामने बनती रही है, जो भी परेशानी भारत के सामने आती रही है, लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। और एक बार फिर से आज जो राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया है, उसमें साफ तौर पर विदेश नीति पर उन्होंने हमला बोला है, केंद्र सरकार पर हमला बोला है और ये कहा है कि अब देश कमजोर होता जा रहा है। जी संदीप जी तक शायद मेरी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच हमारे साथ आनंद त्रिपाठी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे जो वार पलटवार जो चल रहा है सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी मंत्री जो है वो जवाब दे रहे हैं लगातार। और आज भी केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति के मामले पर हर एक सवाल का जवाब दिया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके कार्यक्रम का आपने टाइटल रखा है रागा का शब्द बाण जी, तो राहुल गांधी शब्द बाण चलाने की बजाय शब्द भेदी बाण चलाना सीखते जी, तो उनकी राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा रहता जी, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के बड़े ही अच्छे शिष्य बनकर उभरे हैं पिछले 1 सालों में जी, कि आरोप लगाना और उसकी जिम्मेदारी लेने से पहले ही भाग खड़े होना। जी, ठीक है। राहुल गांधी ने जो वीडियो मैसेज आज जारी किया है जी, उस पर उनका कहना है कि राष्ट्र आज असुरक्षित है। जी, क्यों है? क्योंकि आज विदेशी संबंध भारत के लोगों से, अपने पड़ोसियों से खराब है, दुनिया के अन्य देशों से खराब है, जी, भारत की आर्थिक स्थिति खराब है और भारत के अंदर भी स्थिति खराब है। जी, इन तीनों बातों में अगर सिलसिलेवार जवाब देना चाहूं मैं, जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज दुनिया में कहीं भी देखा जाए, हो सकता है सिर्फ कांग्रेस को न दिखता हो, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत से सबसे बेहतरीन संबंध बने हुए हैं। जी, पहले भी रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो काल है जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपनी ऊंचाइयों पर है। एकाध पड़ोसी हैं जिनसे हमारे संबंध नहीं अच्छे हैं, जिसमें चीन है, पाकिस्तान है, लेकिन राहुल गांधी ने जो नाम लिया कि भूटान से हमारे अच्छे संबंध थे, नेपाल से हमारे अच्छे संबंध थे, श्रीलंका से हमारे अच्छे संबंध थे, मालदीव से हमारे अच्छे संबंध थे, वो थे शब्द वाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आज इन देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है? राहुल गांधी किस दुनिया में जी रहे हैं? नेपाल की कुछ पिछले 1-2 महीनों से हरकतों को छोड़ दिया जाए, भूटान से हमारा बहुत बेहतरीन संबंध है, श्रीलंका से हमारे बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस को न दिखे वो अलग बात है। और विपक्ष की बात जो है आप उठाते हैं कि विपक्ष बार बार इस बात को उठा रहा है, कांग्रेस ही सिर्फ विपक्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा। 543 लोकसभा सदस्यों में कांग्रेस के पास सिर्फ 57 विधायक सांसद हैं, ठीक है। उससे ज्यादा बड़ा विपक्ष इस देश में और मजबूत है। किसी को इस बात पे ऐतराज नहीं है कि वर्तमान सरकार ने चीन के साथ हुए ये विवाद में जो अपना तौर तरीका अपनाया वो एक बेहतर तौर तरीका था, वो अच्छे तरीके से निपटी। सिर्फ कांग्रेस को ही समस्या है। राहुल गांधी एक ट्वीट कर देंगे या वीडियो मैसेज जारी कर देंगे, लेकिन जब कभी मौका आएगा आप देखिएगा संसद में वो इन बातों को उठाने से परहेज करेंगे, आप निश्चित मानिए। जी, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं कांग्रेस से। संदीप जी, अब मेरा सवाल यही, क्योंकि जिस तरीके से आनंद त्रिपाठी जी ने कहा है हमारे ज्यादातर पड़ोसियों से भी संबंध सही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहले जो संबंध होते थे उनसे कहीं ऊंचा स्तर अब हमने हासिल कर लिया है, तो फिर कांग्रेस इस तरीके के सवाल क्यों उठा रही है? पहले बात तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसा भी हमारे मित्र कहते हैं आनंद त्रिपाठी, हमारे सबसे अच्छे संबंध है, तो किस तरीके से अच्छे संबंध है ये बताना चाहता हूँ कि चीन का बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर जो है वो लीज पर दे देता है श्रीलंका जो है, आपको न देकर चाइना को। नेपाल की स्थिति ये है कि आप अपने डैम की मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ जाने इंजीनियर को जाने नहीं दिया जा रहा है। संबंध है। आप बात कर रहे हैं भूटान की, भूटान में जिस तरह आप जो है जिसको
ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा और ये हमारे नैतिक दायित्व हमारे संबंध के आधार से उस पर आपने धोखा किया, तो आज भूटान कैसे खुश होगा आप समझ सकते हैं। और ये बात हमारे जो है एक दूसरे मालदीव की बात कर रहे थे, वहाँ की परिस्थितियां किस तरीके से है, आप एक भी आवाज चाइना के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने डरते हैं चाइना से कि वो जब कोई भी आप चीज देख लीजिए, चाइना को जब भी फॉरेन जो बोलने आते हैं चाइना के मुद्दे पर, चाइना का नाम नहीं लेते तो पड़ोसी देश कहते हैं। तो चाइना से आप इतने डरते क्यों हैं? आप कह रहे हैं कि आप, हमारे मोदी जी का ही बयान है, कहते हैं ना कोई है ना कोई, हम रिपोर्ट पढ़ते हैं कि चीन जो है 1.5 किलोमीटर पीछे चला गया। तो भैया जब घुसा नहीं था, घुस नहीं आया था, तो 1.5 किलोमीटर पीछे कौन गया? तो आप जो है गुमराह कर चीज की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर लीजिए, हमारी जो है चलते थे और हमारी रिस्पेक्टेड जो आंख में आंख डाल के बात करने वाली बात करते थे, उस तरह के रिलेशन हमारे जो है अमेरिका से थे। आज हमारे रिलेशन व्यवस्थाई कर गए हैं। H1 वीजा जो है अमेरिका ने घटा दिया, आप कह रहे हैं कि संबंध बढ़िया है। H1 वीजा उसने कमी कर दी है H1 वीजा में, आप कह रहे हैं संबंध बढ़िया। और आप बात कर लीजिए रसिया आज नाराज है कि हम चाइना को, पहले की सरकार जो थी अमेरिका और जाकर हाउडी मोदी करते हैं और उसका जो है कर्ज उतारते हैं नमस्ते ट्रंप के, जिससे जो है पूरा देश भुगत रहा है कोरोना की महामारी के रूप में। तो आप राहुल जी ने जो डिफाइन किया है कि एक देश किस तरीके से जो है उसकी संप्रभुता की रक्षा होती है और उसके लिए कौन कौन सी जिम्मेदार चीजें होती हैं, उस पर उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से बात रखी है और बहुत कम शब्दों में, बहुत छोटे चीजों में। जैसे कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमी 8 में चली गई, गवर्नर जी कह रहे हैं कि 2021 में हमारी माइनस में जीडीपी आएगी। और आप तब की बात कर रहे हैं जब लेहमन ब्रदर्स जैसा बैंक बिक रहा था तो हमारे यहाँ की ग्रोथ 8.5 और 9% थी। आप हमको क्या बताएंगे महोदय आनंद त्रिपाठी जी? आप जो है देश को गिरवी रखकर देश की देश चला रहे हैं, सारी संपत्तियों को बेच डाल रहे हैं, सब कुछ बेच डाल रहे हैं। आपके आधार पर कह रहे हैं कि जो है क्या कर रहे हैं? जी आनंद त्रिपाठी जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। आखिर जनता को गुमराह कर कौन रहा है, सरकार या फिर कांग्रेस? नहीं, देखिए परिस्थितियां जो भी है, सरकार अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह चुकी है चीन के मुद्दे पर जी, ठीक है। अब हमको सरकार की ही बातों पर तो भरोसा करना पड़ेगा जी। हम ये कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी है, उसका अधिकार है सवाल उठाना, बिल्कुल। उसके अधिकार पर कोई मेरी तरफ से या सरकार की तरफ से या इस देश की किसी भी सेक्शन की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं कोई कह रहा है। उनको अधिकार है वो उठाएं, लेकिन हर चीज, हर सवाल को उठाने का एक तरीका होता है और कांग्रेस पार्टी उस तौर तरीकों को भूल सी रही है। मेरा जो कहना है वो ये है कि एक भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी, बिल्कुल ठीक है, और उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक है। उनको एक जिम्मेदार विपक्षी के तौर पर सामने आना चाहिए, आरोप लगाना और उस पे जब उसके जिम्मेदारी लेने की बात आए तो उससे पीछे हट जाना, ये सही तरीका नहीं है। मैंने जो बात कही कि कांग्रेस ही विपक्ष नहीं है, प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में पूरा मौका था कांग्रेस के पास और अन्य विपक्षियों के पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां कुछ अपने सवाल खड़े किए और आगे बढ़ गई, लेकिन बाकी का विपक्ष सरकार के साथ था। तो मैं ये जो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश के मूड को नहीं समझ पा रही है, जो उसकी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी इस देश का मूड क्या है उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे, ये प्रॉब्लम है। ये सही है कि आज आर्थिक स्थिति देश की ठीक नहीं है जैसी कि होनी चाहिए थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस पैंडेमिक का है। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया पे इफेक्ट डाला है, कोई भारत पे इफेक्ट थोड़ी ना है। बेरोजगारी बढ़ी है, इसकी वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, इसमें किसे इनकार है? ये तो आज देश का बच्चा जान रहा है, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है
और बाकी परिस्थितियां जिम्मेदार है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सरकार जैसे राहुल गांधी ने आज कहा कि हमें पैसा पूंजी फेंकना चाहिए, बाजार में पूंजी लाना चाहिए। एमएसईएम सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज का प्रावधान किया गया है वो क्या है, आप बताइए मुझे। वो यही तो है, उसी से तो पूंजी आएगी बाजार में, यही तो पूंजीकरण के तरीके होते हैं। और क्या तरीका होता है सरकार के पास। जी संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 3 लाख करोड़ EMI तो पूंजी कैसे आएगी। चलिए आप माल बहुत बना लिया, एमई सेक्टर जो हो गया, कंपनी खुल गई और तुम माल ढेर सारा बना लिया, भैया खरीदेगा कौन। मतलब आप इतनी से इतना थोड़ा सा सेंस है आपके अंदर, जब तक पब्लिक की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी आप माल खूब बना लीजिए, उससे क्या फायदा होने वाला है। एक कौन सी बात आप समझ में नहीं आ रही है। और आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी मूड नहीं समझ पा रहे हैं, तो भैया राहुल गांधी जी पुलवामा जैसी घटना का चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर। आज चुनाव नहीं चल रहा है, फिर भी हम चीन जवाब आप दे रहे हैं, हम चीन को घेर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सवाल चीन पर उठाया है कि उन्होंने हमारी किन परिस्थितियों में हम पर हमला किया और वह किन परिस्थितियां, जो परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे, निश्चित रूप से जिम्मेदार होगा। भारत कमजोर स्थिति में है, भारत की तरफ से सही और सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्यों क्या जवाब दिया जा रहा है। 1960 हमारे पास 2,80,000 सैनिक थे और हमारे पास और डंडे लेकर जो है हमारे सैनिकों ने चीन से लड़ा। भले हम युद्ध हार गए, 1301 सैनिक शहीद हुए, लेकिन हमने आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन आज की मौजूदा सरकार आत्मसमर्पण कर दिया जिस तरह मोदी जी ने। और हमारे जी एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, आपको जाना होगा, और इससे पहले एक फाइनल कमेंट, क्या आत्मसमर्पण कर दिया है भारतीय सेना ने वहां पर। जी आनंद त्रिपाठी जी। नहीं, मैं इस बात को एकदम से सिरे से खारिज करता हूं। ये आरोप एक राजनीतिक पार्टी के हो सकते हैं, इस देश का को कतई विश्वास नहीं है कि भारत ने आत्मसमर्पण किया। भारत की सेना और भारत की सरकार, मेरा ऐसा मानना है, बहुत मजबूती से लड़ी है और मुंह तोड़ जवाब दी है। और चीन को इतना कड़ा जवाब की उम्मीद नहीं थी जितना कड़ा जवाब दिया गया है। जी आनंद त्रिपाठी जी, चाहे कुछ भी कहे, वो अलग स्थिति है, वो राजनीतिक उनके अपने वो विचार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने कही। लगातार संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया है। हमने सेना तब भी लड़ी थी जब 2,80,000 सैनिक हमारे पास मात्र थे और सिर्फ सेना बॉर्डर पर डंडे लेकर सुरक्षा कर रहे थे, लड़ी थी। आज तो हमारे पास यहाँ से जो है मिसाइल दागी जाए और अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता है, तब आप क्यों डर रहे हो। और आप जो चाइना का नाम लेने से डर रहे हो और आप कह रहे हो कि न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। जब कोई घुसा नहीं, कोई घुस नहीं आया तो सैनिक हमारे क्या उस पार गए थे, उनके बॉर्डर में गए थे। आप कहना क्या चाहते हैं, गृह मंत्री का बयान अलग है, विदेश मंत्री का बयान अलग है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान अलग है। आप कह रहे हैं कि आप सरकार पर विश्वास करिए। किस पर विश्वास करें, गृह मंत्री पर करें जो है विदेश मंत्री पर करे या मोदी जी पर करे। तो देश को पूरी तरह से बीजेपी गुमराह कर रही है या बात पूरी जनता जान गई है, इसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है, वह जान रही है, वह देख रही है कि किस तरह से भाजपा की सरकार ने चाइना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सेना तो तोड़ जवाब दिया है। संदीप जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों लद्दाख गए और आज रक्षा मंत्री वहां पर गए, तो क्या वहां पर कांग्रेस को जवाब देने गए थे या विपक्ष को जवाब देने के लिए गए थे या फिर चीन को जवाब देने के लिए गए थे। बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो आप बता दें आपको कि आप भी जान रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ले गए और ले से 288 लद्दाख की है। आप बॉर्डर को साधन किया था, वहां मोदी ने PR एजेंसी के जो है तरीके से किया। सैनिकों को जो है, घायल सैनिकों को सावधान की मुद्रा में बैठाकर मोदी जी भाषण दे रहे हैं। तो
PR एजेंसी है मोदी जी, हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये जो है सिर्फ जो है हेडलाइन मैनेजमेंट करती है और उसके तरीके से जो है एक शगुफा खत्म होता है, दूसरा छोड़ा जाता है, या निरंतर चली रहती है। और अंधभक्तों को जो इनके सपोर्टर हैं उनके दिमाग से बात हटने न पाए तो एक नया जो है ड्रामा रचकर करार होता है। उसी तरह भाजपा का जो है कार्य है और ये मैनेजमेंट जो काम करते हैं। 80 किलोमीटर की दूरी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इंदिरा जी हो, जो है मनमोहन सिंह जी हो जी संदीप जी, इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से तुरत जी जुड़ गए हैं। तुरत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद हितेन जी। तुरत जी, कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट करती है बीजेपी, और जो चीन का नाम नहीं लिया जाता सीमा पर जाकर भी, और वहां पर सैनिकों को भी सावधान मुद्रा में बैठाकर, जो घायल सैनिक हैं उनको भी सावधान की मुद्रा में बैठा करके भाषणबाजी करके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है या अपना वीडियो डाला है जी, वो उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है जी। आज संयुक्त राष्ट्र का 75वां स्थापना दिवस है जी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी संबोधन करने जा रहे हैं, विशेष संबोधन करने जी। महासचिव गुटेरेस भी उनके साथ होंगे, एंटोनिया गुटेरेस जी भी उनके साथ होंगे जी। इस महत्वपूर्ण संबोधन के कुछ घंटे पहले ऐसा वीडियो डालना, ऐसे ट्वीट करना, ये कटाक्ष करना, ये उनके मानसिक दिवालियापन की एक मिसाल है। और दूसरी चीज जो उन्होंने किया है, जो आप उनके वीडियो को गौर से देखिए, 3 घंटे 38 मिनट उन्होंने विदेश नीति पे बोला है। उस विदेश नीति में उन्होंने कौन से ऐसे विरोधाभास की बात की जहां पे उनको शर्म आनी चाहिए? अरे गर्व होना चाहिए, इस देश का प्रतिनिधि ऐसा महानायक है जो देश को विकास की ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, जिसका नाम मोदी जी है। आप देखिए, ये जो इन्होंने वीडियो डाला, ये एडिटेड है, इसमें कुछ पार्ट है, क्योंकि जो 1 जुलाई के इनके फोटो थे वो देखिए, 10 जुलाई के फोटो देखिए, 7 दिन के अंदर उनके बाल इतने बड़े हो गए। 1 जुलाई के फोटो में और 7 जुलाई के फोटो में अंतर देखिए, 13 जुलाई के फोटो में और 17 जुलाई के फोटो में अंतर देखिए। जी तुरंत जी, संदीप जी कुछ कह रहे हैं। जी जी संदीप जी, ये वीडियो पहले वो 14 तारीख को डालने वाले थे। 14 तारीख को वीडियो ना डाल के उन्होंने आज संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन जो 75वां स्थापना दिवस हो रहा है उसके अवसर पर भारत की नाक नीची करना चाह रहे हैं। ये देशद्रोहियों की नीतियां होती हैं, देशभक्तों जी तुरंत जी, आपको रोकना चाहूंगा। संदीप जी, एक फाइनल कमेंट आपका। जी, हमारे मित्र कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र और मोदी जी की दाढ़ी, और ये मोदी जी दाढ़ी बना रहे। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जैसे हमने बताया कि PR एजेंसी, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो उनको उनका सेट देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर वो बन रहे हैं। वो तैयारी है कलाकार नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुरत जैदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और हर सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं विदेश नीति को लेकर के, वो कहीं ना कहीं जायज भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पड़ोसियों के साथ जो संबंध खराब हो रहे हैं, चाहे वो चीन पाकिस्तान के साथ पहले से ही खराब हैं और अब नेपाल के साथ भी खराब होते हुए संबंध दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह सवाल कहीं ना कहीं उनका गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं पूरे विश्व में, उनके साथ भारत के संबंध पहले से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो रागा का शब्दबान इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।